जॉयदी बंगाली है कि पंजाबी है, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा. His acceptance in Punjab. I'm mixed. Yes. Really, that speaks about his personality, and his humbleness and, networking, I will say also, he keeps people in contact. And I spent more than, I think, 37 years in the government, central government, and now for past more than 12 years, I'm heading this association of the hospitals. We have 21,000 hospitals as our members, and we govern it through 21 chapters all over across. Most of the time nowadays actually are spent with the government, because government is now little bit, I will say, forthcoming in the healthcare. अगर आप थोड़ा देखो तो 2017, 2017, the policy came. नरेंद्र मोदी जब बने 2014 में, the new health policy came. And since then, I got attached with the Ministry of Health as advisor, basically because in the policy it was mentioned that they will bring universal health coverage over the period of time. Now, over the period of time, we thought it will be about 3-4 years. बट वो मोदी साहब को पता नहीं क्या सूझी कि वो उन्होंने 2018 में लॉन्च कर दी आयुष्मान भारत. नाउ आयुष्मान भारत, एज यू आर अवेयर, अबाउट 40% of India population was to be covered. In fact, we were all preparing, various standard costing, pricing, and nobody knew that it will come so soon. So in month of April 2018, we got a message that it may be launched on the birthday of the Narendra Modi ji, that 17th of September. तो हमने जल्दी जल्दी जितना भी करना था बना के कर दिया, and anyway the scheme got launched. But I will not say 40% of population is covered under that, because that is on theory. Practically, the population which has been envisaged in that, still we have not reached out to them. We have not even issued cards to them. And now, of course, 70 plus population, which is 6% of India's population, also is covered. So theoretically, 46% of population is covered under this scheme. Anyway, that is one aspect. Now, universal health coverage. Many people want to know, actually, in normal course, that what is the meaning of universal health coverage. The universal health coverage is to provide healthcare to the population at the cost which they can afford. So this is typically with the healthcare, because होटल में आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि होटल should be affordable, या गाड़ी should be affordable, telephone should be affordable, but in healthcare, it is built in any democracy that healthcare should be provided at the cost which people can afford. Or if I remember the Atal Bihari Vajpayee का जो first parliament में था statement, he said that I want to provide free healthcare service to the below poverty line, free education to the below poverty line, and he added one more thing which people don't talk about, that free legal services also to the population which they cannot afford. Actually, वो सबसे बड़ी problem legal services की है. That these three things he mentioned, but of course we forgot, and now so यूनिवर्सल हेल्थ केयर के 4 कंपोनेंट हैं. मैं 5 मिनट और लूँगा बिकॉज आज काम दूसरा है, बट 4 कंपोनेंट, आप दोनों हेल्थ केयर से इंटीमेटली कनेक्टेड नहीं हो, बट इंडस्ट्री से जुड़े हो आप, उसमें 4 कंपोनेंट हैं हमारे. एक तो है हेल्थ केयर शुड बी अवेलेबल. अवेलेबिलिटी में क्या आता है? नंबर ऑफ हॉस्पिटल, नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ नर्सेज, नंबर ऑफ अलाइड हेल्थ केयर पीपल, फार्मेसी, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है. बड़ा फैक्टर है ये. और WHO ने ये कहा कि 1000 पॉपुलेशन के पीछे 3 बेड होने चाहिए. हम क्या 1000 पॉपुलेशन के पीछे 3 बेड्स शुड बी अवेलेबल. नाउ इंडिया में आज मीन मैं 22 का डेटा आपको बता रहा हूँ जो हमने कंपाइल किया हुआ है. वी हैव अबाउट 2.1 मिलियन, मतलब 21 लाख बेड है हमारे पास. और अगर हमें WHO को मीट करना है तो हमें चाहिए 40 लाख, मतलब 4 मिलियन बेड चाहिए हमको. दैट मीन्स वी हैव टू डबल द नंबर ऑफ बेड्स, विच इज नॉट इजी जॉब. डॉक्टर्स, लकीली आपने देखा होगा कि आजकल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज खुलते जा रहे हैं.
आई रिमेम्बर ओल्डन डे ऑफ पंजाब, यू नो, के सारे जो फार्म हाउसेस थे वो इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए थे, यू नो, एंड देन वी रियलाइज दैट वी हैव गॉन टू मच। तो अभी 1,10,000 MBBS सीटें हैं हमारे पास और करीब 70,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीटें भी हैं हमारे पास, है ना। तो वो आई थिंक अगले 4 तो नहीं, 5 साल के बाद वी विल हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ डॉक्टर्स। नर्सेज की शॉर्टेज है फॉर मैनी रीजंस, वो अभी मैं बात नहीं करूंगा। तो वो एक चल रहा है काम, दैट इज अवेलेबिलिटी। व्हाट इज द सेकंड फैक्टर ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवर? दैट इज एक्सेसिबिलिटी। उसमें इंडिया बहुत पीछे है। तो HPI वी डिड ए वेरी बिग स्टडी, और गवर्नमेंट को जब हमने सबमिट की थी, गवर्नमेंट भी उसमें हैरान हो गई। उसमें यह था कि हर एक स्टेट में हमने निकाला कि नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं। जैसे एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा कि लेट से केरला, उसमें 3 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन है, वो दे मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ WHO, 3 बेड्स पर 1000। अब सबसे नीचे कौन है? बिहार, वो 0.3 है, 0.3 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन। तो आपके सारे बिहार के लोग बेचारे या तो वहीं खत्म हो जाते हैं, इलाज नहीं करा पाते हैं, अदर दे रश टू दिल्ली एंड पूरे इंडिया में बेचारे भागते रहते हैं। ओके, सो वी हैव सबमिटेड दिस स्टडी टू टेल देम, दैट इज वन। सेकेंड इज विद इन द स्टेट। सो लेट अस से एक तेलंगाना का एग्जाम्पल देता हूँ या तमिलनाडु का। तो तेलंगाना में 126 अस्पताल हैं जो 100 बेड वाले हैं, बड़े वाले मतलब 126। उसमें से 118 कहाँ पर है? हैदराबाद। आप देखो ना प्रॉब्लम क्या है हमारे कंट्री की। तेलंगाना में 126 और उसमें से 118 हैदराबाद। तो बेचारे सारे तेलंगाना के लोग बेचारे हैदराबाद आएंगे, अगेन उनके लिए प्रॉब्लम। तो एक्सेसिबिलिटी इज ए बिग फैक्टर। थर्ड फैक्टर इज अफोर्डेबिलिटी, कि हम तो उसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम आयुष्मान भारत के थ्रू, CGHS, ECHS, इसके थ्रू जो है ना हम सर्विसेज दें। लेकिन ओवरराइडिंग फैक्टर क्या है? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है हेल्थ केयर में खर्च करने के लिए। इस समय 2% से कम हम खर्च करते हैं GDP का, 2% से कम। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं वैसे ही कि वैसे तो बड़ी रिच है गवर्नमेंट। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियां हैं। सबसे बड़ा खर्च हमारा होता है एग्रीकल्चर में, जो आपको नजर नहीं आता है। सब्सिडीज जो हम देते हैं ना, वो वहां जाता है। नंबर 2 जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप जो देख रहे हो, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, सारा शिपिंग, यू नेम इट। Because this government thinks that by infrastructure we will be able to improve the economy, बाद में हेल्थ केयर में हम पैसा डाल देंगे। थर्ड पैसा कहाँ जा रहा है आपको? डिफेंस में, इंडिजनाइजेशन, थिंग्स लाइक दैट। आपको इंडिजनाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट में भी जा रहा है पैसा। सो विद दिस लिमिटेड मनी दे आर नॉट एबल टू कंपनसेट टू द हॉस्पिटल, बिकॉज अल्टीमेटली सारा इलाज कहाँ से होता है? ये स्कीम है ना जो आयुष्मान भारत की, इलाज कहाँ होता है? गवर्नमेंट के हॉस्पिटल तो लिमिटेड है ना। आपको वैसे बता दूं 9 लाख बेड है गवर्नमेंट के पास और प्राइवेट के पास 13 लाख है। तो इलाज होता है प्राइवेट में, उनको वो पैसा पूरा दे नहीं पाते, रेट्स कम है। तो एक वो अभी समस्या चलती रहेगी, काफ़ी अगले 5 साल तक चलती रहेगी। तो दैट इज अफोर्डेबिलिटी। तो ओनली वे आउट इज दैट पीपल शुड गो फॉर प्राइवेट इंश्योरेंस। लोग जाते नहीं है। आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ, मैं अपने ड्राइवर से बात करता हूँ, उसकी तनख्वाह है 23,000। कहता जी मैं अपने बच्चे के लिए 5,000 वाले स्कूल में डाल रहा हूँ। यू सी, ही सो कॉशियस कि मैं एजुकेशन अच्छी बच्चे को दूँ। अच्छा भाई, हेल्थ केयर में तूने क्या किया है? हेल्थ केयर में क्या, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो दे डोंट बॉदर अबाउट इन्वेस्टिंग इन द हेल्थ केयर। और जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है देन दे रन इनटू प्रॉब्लम। एनीवे, तो अफोर्डेबिलिटी। और लास्ट है जो हमारा है वो एक्सेप्टेबिलिटी, क्वालिटी, जिसमें मेरा नाम जुड़ा रहता है। वो मतलब 2005 की कहानी है। एक्रेडिटेशन सिस्टम मैंने बनाया पूरा, और वो खैर आज उसके बड़ा फर्क पड़ा है। पेशेंट सेफ्टी हर एक आदमी जानता है क्या होती है, सब कुछ। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, एंड वी आर ऑल वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। एंड फाइनली मैं आपको बताऊंगा, रनिंग ए टर्शरी केयर हॉस्पिटल टुडे
इज द मोस्ट डिफिकल्ट। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई सीईओ एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल का है 5 साल तक, वो कुछ भी चला सकता है। Very difficult. इट इज सो कॉम्प्लेक्स। मतलब पेशेंट का प्रेशर, मैनेजमेंट का प्रेशर, रेगुलेटरी बॉडीज का प्रेशर, और उसके बाद में सस्टेन करना, क्योंकि खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, कोई अंदाजा है? यंगेस्ट कोई बता सकता है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की कितनी थी 47 में? अंदाजा लगाओ ऐसे ही। Around 60। ठीक है? हैं? ज्यादा है? नहीं, कम। कम है ये। कितनी थी? 23 को 23, 24। 23 ईयर्स। मतलब 23 ईयर्स बाद में मर जाता था। एनीवे, आई थिंक ही इज नॉट फार फ्रॉम दैट। 37 ईयर्स थी, 34 to 37, ये वेरिएशन है डेटा में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज सो लो। आज हमारी 73 ईयर्स है। Exactly. यू सी, ये एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, डायग्नोस्टिक में, डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन में, सारी चीजों की वजह से। अब उसकी वजह से खर्चा तो करना पड़ेगा ना आपको। एक तरफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज गॉन टू 73, भाई somebody has to pay for it ना। Right. एंड दैट इज कमिंग। जो आप कहते हैं ना, करे फोर्टिस बड़ा लूट माट करता है, मैक्स वाला लूट माट करता है, अपोलो लूट माट करता है, ये लूट माट नहीं है एक्चुअली, वो एक्चुअल कॉस्ट है। सो रनिंग ए हॉस्पिटल टुडे, एंड दैट इज वेयर दिस ब्रांच ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन केम। गवर्नमेंट में तो इवन 6 साल पहले तक लोग MBA को लेते ही लेते थे, कहते थे हम डॉक्टर चला रहे हैं। डॉक्टर का काम है ट्रीटमेंट करना। एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम सो कॉम्प्लेक्स। प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी आप देखेंगे, दे रन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड नाउ गवर्नमेंट आल्सो इज पुटिंग एडमिनिस्ट्रेटर इन प्लेस कि भाई आप फोकस करो। एंड दैट इज वेयर दिस बुक एक्चुअली व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट कवर नाम जो है ना कंप्रेहेंसिव। इफ यू गो थ्रू इट इज, एंड नाउ ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पेजेस भी बहुत बढ़ा दिए हैं, इतना इट हैज बिकम वॉल्यूमिनस। So this book actually is very important from that perspective. So anyway, I think healthcare में जो it is a necessity of course healthcare की, and target ये है। वैसे तो गवर्नमेंट हर जगह यही टारगेट बताती है। मैं जहाँ भी मीटिंग में जाते हैं, हम प्लानिंग कमीशन में या नीति आयोग में बहुत मीटिंग जाना पड़ता है मुझे, हर एक आदमी कहेगा प्रधानमंत्री का कहना है कि 2047 में हमें विकसित भारत बनना है। ये एवरीवेयर दे टॉक लाइक दिस। मैंने कहा विकसित भारत बनना है तो हेल्थ केयर में भी हमें वहां पहुंचना है, तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का टारगेट जो है वहां पहुंचना है। तो एनीवे, आई थिंक थिंग्स आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। आई कैन ओनली से वन मोर थिंग, दैट इंडिया टुडे, हमने हिसाब लगाया था एक बार, मेडिकल टूरिज्म जो आ रहे हैं बाहर के लोग, करीब between 750 to 1000 are the hospitals in India which are world class. ये छोटी बात नहीं है। 750 to 1000 hospitals are such they can match with the best of the best. So anyway, I think again let us wish that Joydeep keeps on contributing, because इसके अंदर फ्लेयर है वो, राइटिंग की, लिटरेरी, वो फ्लेयर है, हर एक के अंदर नहीं होती है, तो ये मेरे को एक्सपर्ट मानता है, लेकिन मेरे अंदर वो फ्लेयर थोड़ी है कि मैं किताब लिख दूं। एनीवे, आई थिंक ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।